Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to this fluid session again. So we are discussing about hydrokinematics. So simply it is a branch of science which consider only a motion of particles. Like in fluid, we just want to consider a motion. For example, in canal, you just interested to know about the motion of a particle. You are not interested to know which type of force is applied over the fluid. Okay. So further, we would move. If you have any question, please ask me. Uh, I also shared recording of this lecture with all of you, so you could listen this lecture again. So before wasting any further time, we should start our main topic. So the introduction, what is introduction? In the previous chapter, so we don't cover the previous chapter yet because it is not included in course outline. So we suppose that the knowledge you have gotten so far is enough to comprehend this chapter individually. So we would start from here. We have been discussing the effect of force on a liquid at rest. Yes, we have been discussed the effect of force over a body when fluid is at a rest. Recall that concepts of chapter number 3. But in this chapter, no, the author is going to introduce this chapter that we shall study the motion of liquids without any reference to force causing motion. I hope you got this point very well, that why we are not considering this referring force. Is there anyone who want to answer this question? Why we are not interested to consider the force or reference force in this analysis? My dear kids, please participate in class. Otherwise, it would become a dummy lecture. You just uh, you just here just for the sake of showing your face. You couldn't get the idea of today's lecture which I want to deliver in your minds. Understand what I am saying? Please participate in class. You could use any medium apart from English. You could use any medium to have a conversation with me. हम्म, पता नहीं। बेटा मुझे बताओ, बेटा आवाज का किसी और को भी इशू है? जी सर, सर आवाज बहुत ज्यादा आ ही इशू नहीं है। रही। आवाज का काफी नहीं इशू आ है, रही। कट कट। स्क्रीन शेयर हो रही है आपको मेरी? जी सर, स्क्रीन शेयर हो रही है। अच्छा, ये बताओ कि इसके अंदर उसने जो कहा है कि हम रेफरेंस फोर्स कंसीडर नहीं करेंगे, तो ये उसने क्यों कहा है? नहीं समझ लग रही बेटा अभी तक? अगर वो चीज समझ नहीं लगेगी तो फिर आगे चलने का फायदा कोई नहीं है, क्योंकि वो इस तरीके से तो जस्ट फिर मैं बोलता जाता हूँ, आप डमी बन के सुनते रहो, तो फिर वो क्लास वाला जो इंटरेक्शन है वो तो नहीं हो पाएगा। सर आपकी आवाज बंद हो जाती है ना? बेटा नहीं होती बंद, होती नहीं बंद होती है ना। ये छोड़ दो अब इस बात को, क्योंकि मैं हर क्लास को लेक्चर देता हूँ, ये सिर्फ आपकी क्लास में क्यों इशू होता है?
मैं जूम पे तकरीबन हर क्लास को लेक्चर देता हूँ, लेकिन आपकी क्लास को जब भी लेक्चर दूं तो मतलब यही आप लोग आवाज के कहते हो। इट मीन्स के इशू मेरी तरफ से नहीं है, इशू आप लोगों की नीयतों में है बेटा। नो साथ सर। किधर है बेटा, साथ किधर है? सर उसका कह रहा है मेरी क्लास नहीं। कौन कह रहा है? साल सर पहले मैसेज कर रहा था, अभी चेक कर लेते हैं उसे। सर उसका मैसेज आया है कि उसका अनेबल कनेक्शन आ रहे हैं। अनएबल टू कनेक्ट, उसे को दोबारा कनेक्ट करे। Okay, fine. Beta, I would consider this recording with all of you. I would share this recording. So, सर अब आवाज ठीक आ रही है आपकी सर, करें आप ऑनलाइन ही रहें। अच्छा मुझे ये बताओ कि अस्सलाम वालेकुम सर, ये बताओ कि जो मैंने बात की है यहाँ पे, ये समझ लगी है? If you are facing issue with medium of instruction, then I could consider I could deliver this lecture in Urdu. So are you comfortable with English? सर उर्दू में करें सर, ठीक कर दी, उर्दू में उर्दू ज्यादा में कर दी। अच्छा बेटा, अभी तक हम लोगों ने जो चीज़ पढ़ी है वो है, हमने दो चीज़ें देखी हैं। इस चैप्टर का टाइटल था हाइड्रोकाइनेमैटिक्स। क्या टाइटल था इसका? हाइड्रोकाइनेमैटिक। देखो किसी भी चैप्टर का जो टाइटल होता है ना, वो अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए कि जैसा कि मूवी का जो टाइटल होता है ना, वो हमें ये बता रहा होता है कि अगले 3 घंटे हमने क्या देखना है। ठीक है, तो सिमिलरली जो एक चैप्टर का टाइटल होता है ना, वो हमें ये बता रहा होता है कि हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं। तो हमने दो चीज़ें अभी तक पढ़ी हैं, एक काइनेमैटिक और एक काइनेटिक। काइनेमैटिक वो ब्रांच है जिसके अंदर जस्ट हम मोशन को देखते हैं, और काइनेटिक वो ब्रांच है जिसके अंदर हम फोर्स और मोशन दोनों को देखते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि जो मोशन होती है किसी भी बॉडी की, वेदर आई एम टॉकिंग अबाउट लिक्विड्स और आई एम टॉकिंग अबाउट सॉलिड्स, अगर मैं सॉलिड की बात करूं या मैं लिक्विड्स की बात करूं, दोनों सूरतों में जो मोशन आती है बॉडी की, वो किस वजह से आती है? बताओ, जो बॉडी मूव करती है वो किस वजह से करती है? सर फोर्स एंड मोशन। एग्जैक्टली सर फोर्स की वजह से। सही, एग्जैक्टली फोर्स की वजह। हाँ, हम जो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं उसकी वजह से बॉडी मूव करती है। अब क्वेश्चन ये है कि जब आपने किसी चीज़ को एनालिसिस करना है तो आप क्या सिर्फ मोशन को कंसिडर करेंगे, या कि मोशन के पीछे जिस टाइप की फोर्स लग रही है, मसलन वो फोर्स आया कि साइनोसॉइडल लग रही है, ठीक है, जैसे वो शेपर मशीन में आपने देखा होगा कि वो मतलब रेगुलर नहीं लग रही, मतलब वो एक खास टाइम पीरियड के बाद लगती है। ठीक है, सिमिलरली साथ क्यों अनअवेलेबल है? अच्छा चलें, कोई नहीं, मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। अच्छा ठीक है, सिमिलरली जो मोशन है वो यूनिफॉर्म भी आ सकती है, नॉन यूनिफॉर्म भी आ सकती है, कंटिन्यूसली चेंजिंग मोशन भी आ सकती है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये है कि हमने किस एनालिसिस में फोर्स को कंसिडर करना है, किस एनालिसिस में हमने मोशन को कंसिडर करना है। जो लिक्विड्स के एनालिसिस है ना, उसमें हम फोर्स से बहुत कम इंटरेक्शन ऐसा होता है जिसमें हम फोर्स के बारे में इंटरेस्टेड होते हैं। मसलन जब एक डायनामिकली फ्लूइड एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा हो ना, तो हम किस चीज़ में इंटरेस्ट होते हैं? हम उसकी मोशन में इंटरेस्टेड होते हैं। मसलन एक नहर के अंदर पानी चल रहा है, तो आपने कभी ये तो नहीं कहा कि यार मैं देखूं तो सही है पानी मूव कैसे कर रहा है, बस मूव कर रहा है। हमें पता है कि यार आया कि वो ग्रेविटी की वजह से कर रहा है, या कोई पंपिंग डिवाइस हमने पीछे लगाई हुई है,
देखो पाइपलाइन के अंदर एक लिक्विड फ्लो करेगा, वो क्यों करेगा? जब उसके पीछे हम कोई पंप लगाएंगे, ठीक है। अब हमने जब पाइपलाइन को हमने स्टडी करना है, तो हम पीछे अप्लाई की गई फोर्स को नहीं हम स्टडी करते, हम जस्ट वाटर की मोशन को स्टडी करते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोकाइनेमेटिक वो ब्रांच है जिसमें हम फोर्स को स्टडी नहीं करेंगे, हमें ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, हमें उसकी ज़रूरत नहीं होती। हमें जस्ट चेंजिंग मोशन का पता होता है कि नहर की वेलोसिटी किसी खास जगह पे बहुत तेज़ होती है, जस्ट लाइक ब्रिजेस के नीचे, आगे चल के वो बड़ी स्लो हो जाती है, ठीक है। फिर उसकी जो फोर्सेस दीवारों पे लग रही है, यानी कि बाउंड्रीज ऑफ कैनाल, बाउंड्रीज ऑफ कैनाल होती है ना ये वाली, तो उनके ऊपर जो वो लगाएगा, हम उस चीज़ के अंदर इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। तो काइनेटिक के अंदर मैंने आपको हैमर की एग्जांपल दी थी, जैसे हथौड़ा आप लेते हो, उसको सरफेस के ऊपर मारते हो, तो हथौड़े की जो मोशन, जो हथौड़े की फोर्स है, आप उसको भी इग्नोर नहीं कर सकते, और उसके जेरे साया, जेरे असर जो आगे डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हुई है, आप उसको भी इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि डिफॉर्मेशन जो पैदा हुई है वो पर्टिकुलरली किसकी करेक्टरिस्टिक्स है? तो हथौड़े की। अगर छोटा हथौड़ा होगा तो थोड़ी डिफॉर्मेशन पैदा होगी, बड़ा हथौड़ा होगा तो ज़्यादा डिफॉर्मेशन पैदा होगी। तो हम हथौड़े के इफेक्ट को इग्नोर नहीं कर सकते। अंडरस्टैंड, गॉट माय पॉइंट? तो कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जिसके अंदर हम लोग फोर्स और मोशन दोनों को कंसिडर करते हैं, और वो ब्रांच होती है काइनेटिक। काइनेमेटिक के अंदर हमें पता होता है कि यार एक कांस्टेंट फोर्स लग रही है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई पंप लगाया हुआ है, या ग्रेविटी, मतलब नहरें जो है वो अंडर द ग्रेविटी फेड वाटर होता है ना, नहरों में जो पानी फ्लो कर रहा है वो ग्रेविटी की वजह से कर रहा होता है, ठीक है। तो अब नहरों में हमें पता है कि यार कांस्टेंट ग्रेविटी लग रही है, तो वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट दैट which type of force is applied to move this fluid from one place to another place. We are not interested, because we know a constant gravity force is acting over the liquid, ठीक है। तो हम उसके अंदर इंटरेस्टेड नहीं होते, हम सिर्फ इंटरेस्ट किस चीज़ में होते हैं कि यार ये जो वाटर मूव कर रहा है इसकी मोशन कैसी हो रही है। अब समझ लगी है बात की? जी सर। अच्छा, अब चलते हैं हम इसकी पहली लाइन की तरफ। वो कहता है कि in this chapter we shall study the motion of liquids without any reference to the force causing motion। इस लाइन के किस को समझ लगी है? सर फोर्स के बगैर? हाँ शाबाश शाबाश, बताओ, कोई नहीं, जो भी गलत भी कॉन्सेप्ट आ रहा है ना वो भी बताओ। गलत बताओगे तो सही होगा, वरना ऐसे गलत ही वो करते रहोगे तो फिर वो कॉन्सेप्ट गलत बिल्ड हो जाएगा आपके माइंड में। देखो वो कहता है वी शैल स्टडी, हम स्टडी करेंगे द मोशन ऑफ लिक्विड, लिक्विड की मोशन को, विदाउट एनी रेफरेंस टू द फोर्स, यानी कि हम उस फोर्स को रेफरेंस किए बगैर, रेफरेंस मतलब मेंशन किए बगैर, ठीक है, जो कि फोर्स काजिंग मोशन, जो कि मोशन को फोर्स की वजह बनी, हाँ उसकी जो मोशन की वजह बनी, हाँ मोशन की जो वजह बनी है उसको मेंशन किए बगैर हम जस्ट लिक्विड की मोशन को स्टडी करेंगे इस चैप्टर के अंदर। इस बात की समझ लगी है? यस सर। क्या मतलब, क्यों नहीं हम फोर्स को कंसीडर करेंगे इसके अंदर? काइनेमेटिक इसलिए, हाँ काइनेमेटिक इसलिए, एक तो हम काइनेमेटिक लगा रहे हैं, दूसरा ये कि हमें पता कैसे चलेगा कि यार किस नेचर ऑफ प्रॉब्लम के ऊपर मैंने काइनेमेटिक लगाना है या किस नेचर ऑफ प्रॉब्लम के ऊपर मैंने काइनेटिक लगाना है। अगर मैं एक लिक्विड की बात करता हूं तो लिक्विड के ऊपर नॉर्मली हम काइनेमेटिक लगाते हैं। उसकी रीजन क्या है, हम काइनेमेटिक क्यों लगाते हैं उसके ऊपर? लिक्विड फ्लो करता है इसलिए। लिक्विड फ्लो तो करता है, लेकिन सर मैं हाँ फोर्स का आइडिया नहीं होता।
नहीं, आइडिया की नहीं बात है, फोर्स चलो, हमको कांस्टेंट लग रही होती है, तो- हमें उसके अंदर कंसिडर नहीं होता। मतलब अगर ग्रेविटी सर, ग्रेविटी हम अगर उसको force नहरों के अंदर नहीं पानी करते को हैं। फ्लो करवा रही है तो हमें क्या जरूरत है कि हम ग्रेविटी को कैलकुलेट करें, पता तो है कि कांस्टेंट है वो। ओके जी सर। चलें, यस सर। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। सबसे पहले जी, रेट ऑफ डिस्चार्ज क्या है? रेट ऑफ डिस्चार्ज। अब वाटर की मोशन को हमने स्टडी करना है, किसको स्टडी करना है हमने? वाटर की मोशन। मोशन ऑफ वाटर। मुझे एक बात बताओ, अगर आप लोगों ने बाजार जाना है और आपने वहां से शुगर खरीदनी है, चीनी खरीदनी है, ठीक है, आप दुकानदार को क्या कहते हो जाके? सर जितने किलो चीनी 1 लेनी किलो होती है चीनी दे उतना दो। कहते हैं। एग्जैक्टली इसका यूनिट क्या होता है? केजी। केजी। व्हाट अबाउट वाटर? लीटर। 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 वेरी वेरी गुड शाबाश। ठीक है, वाटर हो गया लीटर में। ओके, यस सर। वाटर हो गया लीटर में। अगर जरा भी थोड़ा सा गौर करो, लीटर हम कब लेते हैं वाटर का यूनिट? कभी नहर के अंदर कभी लीटर का वर्ड सुना है आपने? या ये जो मरिंडा या कोक की बोतल्स होती हैं उनके अंदर ज्यादा लीटर का वर्ड सुनते हो आप लोग? जी यस सर। सर। मरिंडा और कोक की बोतल में सुनते हो ना? जी सर। यस सर। और मरिंडा या कोक की जो बॉटल्स हैं उनमें जो आपका वाटर है या वो कोल्ड ड्रिंक जो है वो स्टैटिक होती है, डायनामिक होती है? डायनामिक होती है। स्टैटिक बोतल के अंदर ही होता है सर। एग्जैक्टली वैसे मैंने इसका पहले 3 चैप्टर्स के अंदर स्टैटिक और डायनामिक का डिफरेंस बताया हुआ है, वो बताओ जरा मुझे क्या होता है? तो जो वाटर यानी कि रुका हुआ है या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वो स्टैटिक नहीं होगा। बेटा नहीं, रुका हुआ है कांस्टेंट वेलोसिटी में नहीं बेटा, मैंने इसका ये बताया था, अब भूल गए हो सारा कुछ। वाटर कभी भी स्टैटिक नहीं हो सकता है वाटर स्टैटिक? आपने नो एक सर। एक बर्तन के अंदर पानी लिया हुआ है, ठीक है, आपने गिलास ऑफ वाटर लिया हुआ था, अब उसके जो वाटर के पार्टिकल हैं क्या वो स्टैटिक हैं? नहीं सर, हर टाइम हरकत में रहते हैं। नो सर। हरकत में रहते हैं। तो हम जब बात करते हैं फ्लूइड स्टैटिक की, तो फ्लूइड तो स्टैटिक हो ही नहीं सकता। फिर हम कौन से फ्लूइड को स्टैटिक कह रहे होते हैं? जी। क्वेश्चन आया ना सोचने वाला। हम जी सर। हम उस फ्लूइड को स्टैटिक कहते हैं जिसके पास कोई हेड नहीं होता। मतलब हम डायनामिक फ्लूइड उसको कहते हैं जिसमें बंच ऑफ लिक्विड एक जगह से दूसरी जगह मूव करें, ठीक है। मतलब हेड डिफरेंस का मतलब है कि उसके पास हाइट डिफरेंस हो, क्या हो उसके पास? हाइट डिफरेंस हो, हाइट और डिफरेंस। वाटर एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करे। अब फॉर एग्जांपल आपने पाइपलाइन के पीछे पंप लगाया हुआ है, ठीक है, जी सर। पाइपलाइन के पीछे पंप लगाया हुआ है और पाइपलाइन में वाटर फ्लो कर रहा है। अब बताओ कि पाइपलाइन के अंदर जो वाटर फ्लो कर रहा है वो डायनामिक हालत में या स्टैटिक कंडीशन में? डायनामिक। डायनामिक हालत में है। अच्छा, सिमिलर जो कोक की बोतल है या मरिंडा की बोतल है उसके अंदर जो आपने लिक्विड लिया हुआ है वो स्टैटिक है या डायनामिक है? स्टैटिक। वो स्टैटिक, क्योंकि उसके पास कोई हाइट डिफरेंस नहीं है, ठीक है, वो अपनी जगह पे है। मतलब वो एक ही जगह के ऊपर वो सारे के सारे बंच पार्टिकल मौजूद हैं। बंच कहते हैं, बंच का पता है ना क्या होता है? बंच का नो पता है सर। ना क्या होता है? बंच कहते हैं लॉट नो ऑफ सर। क्वांटिटी को, लॉट ऑफ क्वांटिटी को बंच कहते हैं हम लोग, ठीक है। अगर बंच ऑफ पार्टिकल यानी कि एक लिक्विड की तादाद एक जगह से दूसरी जगह मूव करे ना, तो उसको हम डायनामिक कहते हैं। अगर वो मूव ना करे तो हम उसको स्टैटिक कहते हैं। तो अभी हम जब वाटर की बात करते हैं ना लीटर में, जब वाटर का यूनिट आता है लीटर में, तो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट लिक्विड इन स्टैटिक पोजीशन,
ठीक है, लिक्विड इन स्टैटिक पोजीशन। लेकिन हम यहाँ पे किस चीज की बात कर रहे हैं? नहर की, दरिया की। एग्जैक्टली हम बात कर रहे हैं मोशन की। तो मुझे ये बताओ कि अगर आपने नहर के लीटर्स निकालने हैं, सो क्यूबिक आई थिंक। वो भी इसका यूनिट होता है, वो इसका अगला यूनिट क्यूबिक होता है। सेंटीमीटर। एग्जैक्टली, शाबाश। ये जो आपने कहा ना क्यूबिक सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब, इसको हम क्यूबिक सेंटीमीटर भी कहते हैं, जी सर। क्यूबिक सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन ये है कि अभी 2 मिनट पहले तो आप लीटर कह रहे थे, अभी आप क्यूबिक सेंटीमीटर के अंदर आ गए हो। ये जो ट्रांजिशन हुई है कि ये नहीं है कि अब आप मुझसे पूछो कि सर हमने रोजमर्रा जिंदगी में देखा है जब भी हम किराने की दुकान पे जाते हैं तो हम उसको लिक्विड लेना हो, ऑयल लेना हो, तो हम कहते हैं यार 5 लीटर की कुकिंग ऑयल की बोतल है, डालडा की, ऐसे कहते हैं ना? तो उस हाँ हाँ बोलो, शाबाश। सर उसकी क्वांटिटी थोड़ी कम होती है। जरूरी ये नहीं है ओ कि नहर में नहीं 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 नहीं, नहर में नहीं। देखो मेरी बात सुनो। अच्छा ठीक है, मान लिया कि उसकी क्वांटिटी कम होती है, ये भी आपका फैक्टर हम कंसीडर कर लेते हैं। आप ये कह रहे हो कि सर उसकी क्वांटिटी कम होती है, मैं कहता हूं कि ओके, व्हाट अबाउट एयर कूलर जिसके नीचे एक स्मॉल साइज का पंप लगा होता है, देखा कभी? यस जी सर। सर। वो पानी को सर्कुलेट करवा रहा होता है। यस सर। अब वहां पे क्वांटिटी जो है वो लेस देन नहीं होती, यानी कि बहुत स्मॉल होती है। यस सर। तो हम ये क्यों नहीं, हम ये पंप के केस में हम वहां पे लीटर का वर्ड क्यों नहीं यूज करते? कभी एयर कूलर के लिए लीटर का वर्ड यूज, मतलब एयर कूलर में जो पंप लगा होता है उसके लिए कभी आपने लीटर का वर्ड सुना है? कभी नहीं सुना होगा। नो सर। कभी नहीं सुना होगा आप लोगों ने। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि रोजमर्रा जिंदगी में एक तो हमने लीटर सुना हुआ है वाटर का यूनिट, ठीक है, एक हमने क्यूबिक सेंटीमीटर सुना हुआ, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। जी सर। अब इन दोनों में फर्क क्या है? सर एरिया का, सर स्टैटिक बेसिकली एंड एरिया का। डायनामिक का फर्क है। क्या? सर ये लीटर जो मेजरेबल होता है उसे लीटर में लेते हैं, हाँ हाँ, और दूसरा जो नहीं मेजर हो सकता इजीली उसे क्यूबिक सेंटीमीटर से नहीं मालूम करते हैं। देखो, ये जो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो एयर कूलर था हमारे पास, इसका वाटर तो जी इजीली सर। मैयर हो सकता है ना? जी सर हो सकता है। हो सकता है ना, तो जी इसको सर। लीटर में लेते हैं हम लोग, इसको भी हम क्यूबिक में ही लेंगे, क्यूबिक सेंटीमीटर में। उसकी रीजन मैं बताता हूँ आपको। देखो एक तरफ है हमारे पास लार्ज एरिया की वजह से नहीं लेते हैं नहीं इस तरह, नहीं नहीं नहीं, लार्ज एरिया नहीं बेटा। इसको वॉल्यूम मेजर कर लें। हाँ हाँ हाँ, ये सही है, ये अच्छा है। ये किसने दिया आंसर इसका? वॉल्यूम वाली बात किसने की है? सर मैंने की है जैन। जैन ने, शाबाश जैन, अच्छा पॉइंट रेज किया आपने बेटा। अच्छा, एक तरफ हमारे पास स्टैटिक है, एक तरफ है डायनामिक, ठीक है। इन दोनों की एग्जांपल दो मुझे, स्टैटिक लिक्विड कौन सा है और डायनामिक कौन सा है? कोई एग्जांपल दो रोजमर्रा जिंदगी में कि सर यहाँ पे ये जो लिक्विड है इसको हम स्टैटिक कहेंगे और इसको हम डायनामिक कहेंगे। जो बोतल वगैरह में होता है वो डायनामिक तो स्टैटिक होगा, हाँ जो हमारा पानी के लिए होगा वो डायनामिक। ठीक है, वाटर पाइपलाइन, ठीक है। वाटर पाइपलाइन में जो पंप की मदद से जा रहा होता है वो डायनामिक हो गया, और बोतल के अंदर हो गया, वो हो गया स्टैटिक, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो डायनामिक कंडीशन है वो आती कब है? जब मोशन होगी वाटर की, ठीक है। जी सर। जब भी किसी चीज की मोशन होगी ना, तो हम मोशन को डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते। जैसे बोतल्स के केस में आप कह देते हो ना कि इतने लीटर वाटर, ठीक है। जब मोशन होती है तो हम लीटर्स को डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते,
जब हम डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते तो हमें एक पैरामीटर इन्वॉल्व करना पड़ता है मोशन के केस में, दैट पैरामीटर इज कॉल्ड टाइम। याद आया? दुनिया में जहां भी मोशन स्टडी होती है ना, मोशन, ठीक है, वो हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मोशन की सबसे सिंप्लीफाइड इक्वेशन कौन सी है? दैट इज दिस। याद आया? ये किसकी इक्वेशन है? वेलोसिटी की सर, एग्जैक्टली, वेलोसिटी की। वेलोसिटी जो है वो क्या है आपके पास? मोशन है ना। मोशन कभी ऐसा डिस्टेंस। एक ऐसे हुआ है कि एक बॉडी टेबल पे पड़ी हो तो मैं कहूँ यार इतनी वेलोसिटी से मूव कर रही है वो? नो सर, वो स्टैटिक हो। एग्जैक्टली, वेलोसिटी जो है मोशन है। तो जब सर मोशन की बात की तो मोशन में क्या चीज आया? वेलोसिटी है सर इसकी। टाइम आया। सर टाइम डिस्टेंस भी आया और टाइम भी आया सर। हाँ, हमारे पास टाइम आया। जब हम मोशन की बात करते हैं तो जिस भी टाइप की मोशन होगी ना उसमें टाइम जरूर आएगा, ठीक है। जब हमने वेलोसिटी की बात की तो उसमें डिस्टेंस को हमने डिवाइड कर दिया टाइम से। जब हम फ्लो की बात करेंगे, ठीक है, अगर मैं फ्लो को डिवाइड कर दूं टाइम से तो ये मेरे पास किस चीज की इक्वेशन बनेगी? डायनामिक की या मोशन की? डायनामिक की। सर ये डायनामिक है। एग्जैक्टली, सॉरी मैंने कहना था कि ये मोशन की इक्वेशन बनी है स्टैटिक की? मोशन की सर। मोशन की। तो इस फ्लो ओवर टाइम को मैं कह सकता हूँ कि मोशन ऑफ लिक्विड? जी सर। कह सकता हूँ ना? फ्लो का यूनिट हो गया। अब मैं मोशन ऑफ लिक्विड को अगर डिफाइन करना हो, मोशन ऑफ लिक्विड को, तो फ्लो की जो क्वांटिटी है वो लीटर में आ गई डिवाइडेड बाय टाइम। जी सर। ठीक है ना? लीटर डिवाइडेड बाय टाइम। तो अब ये क्या बन गया? मोशन ऑफ लिक्विड। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड डिस्चार्ज और फ्लो रेट। वाई रेट? रेट मीन जब हम किसी भी चीज को टाइम पे डिवाइड कर देते हैं तो वो चीज बन जाती है रेट। अब हमने फ्लो को टाइम पे डिवाइड किया है ना, तो ये हमारे पास क्या बन गया? फ्लो रेट। क्या बन गया ये हमारे पास है? फ्लो रेट। ये क्या बन गया हमारे पास है? फ्लो फ्लो रेट। रेट। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आपने डायनामिक फ्लूइड की बात करनी है तो डायनामिक फ्लो में जो फ्लो है, ठीक है, वो आप सिंपल ये नहीं कह सकते कि इतने लीटर पानी। आप ये कहोगे कि इतने लीटर पानी इतने टाइम में फ्लो किया है, ठीक है ना? आप जो कहते हो कि यार नहरों में आजकल पानी कम है, वो कैसे पता चलता है? उसके फ्लो रेट से। कैसे पता चलता है? उसके फ्लो रेट से। तो फ्लो हमारे रेट। पास फ्लो रेट। फ्लो रेट का जो फॉर्मूला होता है ना हमारे पास, अब फ्लो रेट डायनामिक वाटर के लिए आएगा या स्टैटिक वाटर के लिए? सर डायनामिक के। ठीक है, तो इसका हमारे पास जो होता है ना, वो सबसे पहले हम लीटर पर सेकंड को भी कहते हैं फ्लो रेट। एक यूनिट इसका ये होता है, एक होता है क्यूबिक सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय सेकंड, ये भी फ्लो रेट का यूनिट है। एक हमारे पास होता है मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय सेकंड, ये दोनों सेम चीजें हैं, बस यूनिट कन्वर्जन है। एक हमारे पास होता है किलोग्राम पर सेकंड। हमारे पास क्या होता है? किलोग्राम पर सेकंड। फ्लो रेट को हम क्यू से शो करते हैं फ्लूइड के अंदर। इसका फार्मूला होता है ए वी। क्या फार्मूला होता है इसका? एरिया, ए फॉर एरिया, वी फॉर वेलोसिटी, ठीक है। तो अगर हम इसको यूनिट निकाल लें, क्यू इक्वल टू एरिया का यूनिट क्या होता है?
मीटर स्क्वायर सर, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या आ गया? मीटर क्यूब पर मीटर क्यूब पर सेकंड। आ गया फ्लो रेट का यूनिट। जी सर। ठीक है, अब मीटर क्यूब को मैं सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर सकता हूँ? जी सर। कर सकता हूँ ना वो यूनिट 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 कन्वर्जन से। जी सर। और सेंटीमीटर को लीटर में कन्वर्ट कर सकता हूँ? एक लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं? एक लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। ठीक है, जी जी सर। ओके। अब आप ये देखो, द क्वांटिटी ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकंड। अब क्वेश्चन ये है कि हम यहाँ पे टाइम क्यों ले आए हैं? अच्छा भला हम लिक्विड को लीटर में ले रहे थे, तो अब पर सेकंड में ले आए हैं। पर सेकंड क्यों लेके आए हैं? सर फ्लो रेट है ना इसलिए। हाँ, डिस्चार्ज हो रहा है। डिस्चार्ज हो रहा है इसलिए। डिस्चार्ज तो हो रहा है, लेकिन मतलब वो कंडीशन कैसे चेंज हुई है? आप मुझसे ये कहो कि सर आपकी बात दुरुस्त है, ये हाँ, आप ये कहोगे सर आपकी बात दुरुस्त है कि जब आप हम लिक्विड किसी बॉटल में लेंगे ना तो उसको लीटर में ही मेजर करेंगे, लेकिन जब वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा होगा ना, डायनामिक कंडीशन में होगा, ठीक है, जी सर। तो उसके लिए हम क्या क्या हमें करना पड़ेगा? उसको पर सेकंड करना पड़ेगा। गॉट माई पॉइंट? जी सर। ठीक है, इसका फार्मूला क्या हो गया? Q इज इक्वल टू AV, Q इज इक्वल टू, सर स्क्रीन नहीं शेयर हो रही। स्क्रीन बेटा हो रही है शेयर, वो सर हो रही है। हो रही है। अच्छा, Q इज इक्वल टू AV, और ये Q इज इक्वल टू AV, और इसका यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर, ये मैंने निकाल के दिखा दिया, मीटर क्यूब पर सेकंड। ओके, जी सर। और एक मीटर क्यूब के अंदर कितने लीटर्स होते हैं? 1000। 1000। ठीक है, ये याद रखना है। ये मैंने क्या लिखा है? इंशाल्लाह। एक लीटर में 1000 cm क्यूब होते हैं। अगर मैं लिखूं एक लीटर में कितने मीटर क्यूब होंगे? बताओ। 1 सर 1। हाँ हाँ, क्या बेटा? अगले क्लिप में मिलते हैं, 1 मिनट।